बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Lecture number 10, Part 1, Linearly Independent and Linearly Dependent, and another topic is Cyclic Modules. आज हम रिंग्स एंड मॉड्यूल्स में ये दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। चलते हैं। लेक्चर नंबर 10 में लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स। A set M1 M2 up to Mn is an R model is called linearly independent if R1 M1 plus R2 M2 plus up to so on plus Rn Mn it is equal to 0 if each R1 R2 up to Rn that is Ri it is equal to 0 for all I runs from 1 to n and is called linearly dependent if at least one Ri is not equal to 0। अगर कोई भी Ri कोई भी एक एलिमेंट इसमें Ri में से नॉट इक्वल टू 0 हो तो फिर ये सेट जो है ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर ईच Ri इक्वल टू 0 हो तो ऐसे हालत में हमारे पास ये सेट जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो M1 M2 अप टू Mn इन अ सेट फॉर्म is linearly independent if each Ri is equal to 0 for all I is 1, 2, 3 up to n। थ्योरम है prove that every irreducible R module is cyclic where R is a ring with unity। मीन R रिंग है और इसमें 1 बिलोंग करता है, मीन यूनिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो R में है। प्रूव ये करना है कि एवरी इररिड्यूसिबल R मॉड्यूल जो है ये साइक्लिक होगा। तो प्रूव किए लेट M बी इररिड्यूसिबल R मॉड्यूल देन ओनली सब मॉड्यूल्स ऑफ M आर M एंड 0। सिंगलटन सेट कंटेनिंग ओनली एडिटिव आइडेंटिटी 0। सिर्फ ये दो इसके सब मॉडल्स आएंगे क्योंकि M जो है ये इररिड्यूसिबल है, इसके अदर सब मॉडल्स नहीं बन रहे, इसके सिर्फ दो सब मॉडल्स बन रहे हैं दैट इज M itself एंड 0 एलिमेंट इन अ सेट। केस फर्स्ट if this M is equal to the singleton set containing the additive identity, if M is equal to 0 then it is cyclic। तो यहाँ पे प्रूफ हमारे पास इस थ्योरम का आ गया। मगर केस 2 में if M is not equal to 0 then element M not belongs to M and M not is not equal to 0 such that a set A is defined as in set form R M not are the elements of A where R belongs to R। R M not तमाम एलिमेंट्स जहाँ पे R R में है और M not जो है ये M में है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये सेट A में आएंगे। प्रूव ये करेंगे वी शो दैट A इज अ सब मॉडल ऑफ M। तो सब मॉडल के लिए सब मॉडल के प्रॉपर्टीज है वो चेक करेंगे। लेट X and Y belongs to A then by definition of this set A R1 and R2 these are two elements of R। M not is a element of M R1 M not X is equal to R1 M not। अगर X Y A में है तो ये इस फॉर्म में होंगे कि R M not फॉर्म में हो। सो X is equal to R1 M not and Y it is equal to R2 M not by definition of set A for R1 R2 belongs to R। now X minus Y प्रॉपर्टीज चेक करते हैं सब मॉड्यूल के। X माइनस वाई इट इज़ इक्वल टू X की वैल्यू पुट करें R1 M नट माइनस माइनस अपनी जगह पे Y की जगह पे R2 M नट। इन दोनों से आप M नट को कॉमन आउट करें। जब M नट कॉमन आउट होगा तो यहाँ पे आएगा R1 माइनस R2। R1 and R2 these are elements of R। So R1 minus R2 is also element of R
लेट इट इज़ इक्वल टू R3। सो यहाँ पे इसकी जगह पे R1 माइनस R2 की जगह पे लेट इट इज़ R3, R3 बिलोंग्स टू R। सो इसकी जगह पे आएगा हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू R3 m naught, which is in a form in set A is by definition R m naught, so it is in a form R3 m naught belongs to A. When the right hand side belongs to A, so the left hand side x minus y belongs to A. So the first condition is satisfied that x minus y belongs to A for submodule. अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड कंडीशन है now x belongs to A and R belongs to R. X belongs to A, it means that x is in a form R1 m naught by definition of A. तो यहाँ पे जब हम लेते हैं कंडीशन के लिए तो R x की जगह पे वैल्यू पुट करें R1 m naught को बाय एसोसिएटिव लॉ R1 m naught, but R and R1 these are elements of R and R1 belongs to R, so it is an element of R. So by closure property let it is equal to one element R4 belongs to R. तो इसके जगह पे आप R4 को रिप्लेस करें। सो R4 m naught is a element in a form of A set definition. So R4 m naught belongs to A. It means that the right hand side belongs to A, so the left hand side Rx belongs to A, which is the second condition of submodel. So from first and second, A is a submodel of M. Now since हमने स्टार्ट में पढ़ा कि R जो है ये रिंग है विद यूनिटी, सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 इसमें बिलोंग करता है। तो अगर हम A के डेफिनेशन को यूज़ करें तो यहाँ पे R m naught की जगह पे 1 m naught विच इज़ इक्वल टू m naught। सो m naught बिलोंग्स टू A, क्योंकि ये R m naught फॉर्म में है, सो m naught बिलोंग्स टू A and m naught is not equal to 0. So A is a set which contains some element, at least it contains 0. So A is not equal to 0 element, बल्कि इसमें इसके अलावा और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं। सो A is a non-empty set. In case सेकंड हमने पढ़ा कि M is a non-empty set. So हमें पता है कि M जो है A जो है ये सब मॉडल ऑफ M है, और सब मॉडल में हमने पढ़ा कि M की इसके अलावा और सब मॉडल, क्योंकि M जो है ये इररिड्यूसिबल है तो इसके सब मॉडल सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। इसलिए अगर A इसका सब मॉडल है तो ये या तो M की इक्वल होगा या 0 होगा, मगर ये 0 नहीं है। A is not equal to containing only 0 element and M is also not containing. So by case 2 A is equal to M. When A is equal to M and A is a cyclic generated by M naught, क्योंकि इसके डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ये M naught से जनरेट हो रहा है। So A is a cyclic generated by M naught. A और M दोनों सेम है, so M is generated by, so M is cyclic generated by M naught, which is our required result. तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो है हमारे पास हमने शो करना था, सो M is a cyclic generated by M naught, तो ये इसका रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम जो है ये थोड़ा लेंथी है। थ्योरम है let M be an R model and let the set M1 M2 up to Mn be a finite subset of M. Then the following are equivalent. 1. M1 M2 up to Mn generate freely R model M. सेकंड कि ये इसके जनरेटर्स होंगे M के।
Second, m1 m2 up to mn is linearly independent and generates m. Third number, every element m belongs to m is uniquely expressible in the form of summation I runs from 1 to s ri mi. Mean m is equal to summation I from 1 to s ri mi. ये यूनिकली एक्सप्रेसिबल होगा with ri belongs to r. Fourth number, each mi is torsion free and m is equal to rm1 rm1 cyclic plus rm2 cyclic plus up to so on plus rm3 cyclic. तो हमने ये प्रूव करना है कि 1, 2, 3 और 4 जो है ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है. अगर 1 है तो 1 हमें 2 देगा, अगर 2 है तो 2 हमें 3 देगा, अगर 3 है तो 3 हमें 4 देगा, अगर 4 है तो 4 हमें 1 देगा. तो ये सब के सब इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, ये हमने प्रूव करना है. तो इस वीडियो में मैं फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड टू थर्ड ये प्रूफ दूंगा. बाकी दूसरी वीडियो में इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें हम फर्स्ट लेते हैं प्रूफ में. सपोज द फर्स्ट पार्ट दैट इज m1 m2 अप टू mn जनरेट्स फ्रीली r मॉड्यूल m. तो टू प्रूव हमने ये करना है m1 m2 अप टू mn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड जनरेट्स m. ये हमने प्रूव करना है. As m is freely generated by m1 m2 up to mn, ये हमने सपोजिशन लिया. We prove that m1 m2 up to mn is linearly independent. हम शो ये करेंगे कि m1 से लेकर mn तक जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है. तो इसके लिए जो ri हमारे पास आएंगे हम प्रूव ये करेंगे कि ri it is equal to 0. Let summation I runs from 1 to s ri mi it is equal to 0. जिस तरह हम लेते हैं r1 m1 प्लस r2 m2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस rs ms इक्वल टू 0. तो इसे मैंने समेशन फॉर्म में लिखा है. I फ्राम समेशन I रन्स फ्राम 1 टू s ri mi इक्वल टू 0. आप इस तरह भी ले सकते हैं, इट इज इक्वल टू 0. नोट दैट n इज अ मॉडल which is equal to r plus r plus r plus r s time and internal direct sum is an r module under addition and multiplication defined as. यहाँ से हमने एक और मॉडल लिया n जो कि इंटरनल डायरेक्ट सम है रिंग और रिंग अप टू एस टाइम. तो मीन के इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो एस टाइम डायमेंशन में होंगे. लेते हैं इसकी एडिशन, डिफाइंड एडिशन और डिफाइंड मल्टीप्लिकेशन. तो डिफाइंड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस तरह है कि ये n में s डायमेंशन है. सो r1 r2 अप टू rs प्लस t1 t2 अप टू ts. देयर एडिशन डिफाइंड एज r1 प्लस t1 r2 प्लस t2 अप टू सो ऑन rs प्लस ts. एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज r1 r2 अप टू rs r multiply with each dimension. So r1 r2 up to rs. Let f is a function from x to n be defined as where x is m1 m2 up to ms which is a set. ये सेट हम प्रूव करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. लेट this function is defined as f of mi. यहाँ से each mi give ei, that is the identity element at ith. ei mean identity element at i जो कि n में लाई करेगा और n में हमारे पास s डायमेंशन है. सो ei जो है ये हमारे पास s डायमेंशन में होगा और ith प्लेस पे 1 होगा.
मीन कि अगर यहाँ पे f ऑफ m1 है तो फिर हमारे पास 1 और बाकी तमाम के तमाम 0। अगर यहाँ पे 2 है तो फिर e2 सेकंड प्लेस पे 1, बाकी तमाम एलिमेंट्स 0। इसी तरह mi है तो ei का मतलब ये है कि ये 1 जो है ये ith प्लेस पे है, बाकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो डायमेंशन 0 है। Since m is freely generated so that f can be extended to a model homomorphism। हमने फ्रीली जनरेटेड का ये डेफिनीशन पढ़ा था कि इसमें जितने f होंगे, जितने फंक्शंस होंगे, वो फंक्शन एक्सटेंडेड टू द मॉडल होमोमॉर्फिज्म होंगे कि उसे हम मॉडल होमोमॉर्फिज्म में ले सकते हैं। तो से पाई इज़ फ्रॉम m to n, m is a freely generated module and n is defined so such that the definition of pi is pi it is equal to f composition of I, but I we know it is a identity function and f is a function defined here, f of mi it is equal to ei, so pi it is equal to f of mi। आप इस तरह भी ले सकते हैं, अगर f कंपोजिशन I देते हैं तो पाई इट इज़ इक्वल टू f ऑफ mi। तो यहाँ पे पाई ऑफ 0 जो है हमेशा के लिए 0 के लिए हमेशा हमें दूसरे साइड पे ये 0 एलिमेंट ही देगा। सो पाई ऑफ 0 इट इज़ इक्वल टू 0। 0 जो है ये 0 0 0 n डायमेंशन यहाँ पे लाई करता है। सो पाई ऑफ 0 इट इज़ इक्वल टू 0 एंड पाई ऑफ समेशन I फ्रॉम 1 to s RIMI इट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम पाई को अप्लाई करते हैं तो समेशन I रन्स फ्रॉम 1 to s, पाई हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग हो जाएगा क्योंकि m जो है ये फ्रीली जनरेटेड है और हमने सपोज किया है। तो सपोजिशन से यहाँ पे हमारे पास मॉडल होमोमॉर्फिज्म बनता है। सो पाई इज़ होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे आप पाई जब इन तमाम के साथ इस समेशन के साथ अलग अलग करते हैं तो समेशन में ये हर एक के साथ अलग अलग हो जाएगा पाई RIMI, क्योंकि पाई जो है ये होमोमॉर्फिज्म है। पाई अगेन होमोमॉर्फिज्म है, सो RI ईच वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा RI पाई MI। अब पाई MI जो है इसका डेफिनीशन पाई MI इट इज़ इक्वल टू f कंपोजिशन ऑफ I। सो f कंपोजिशन ऑफ I MI। अब कंपोजिशन फंक्शन को हम इस तरह लेते हैं कि RI f ऑफ I ऑफ MI। I चूँकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है सो I MI इट इज़ इक्वल टू MI। तो I MI की जगह पे MI आएगा। अब यहाँ पे f ऑफ mi, मगर f ऑफ mi आपने से ऊपर पढ़ा यहाँ पे कि पाई f ऑफ mi जो है ये f ऑफ mi इट इज़ इक्वल टू ei। सो f ऑफ mi की जगह पे रिप्लेस करें ei को, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास f of mi it is equal to ei by definition of f. So summation I runs from 1 to s ri ei it is equal to 0। तो हमारे पास अब इस तरह आएगा कि समेशन I फ्राम 1 to s ri ei इक्वल टू 0। ei जो है ये ith प्लेस पे इसका 1 है और ri इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ri ei इट इज़ इक्वल टू 0, मीन ri इट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ei जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है। जिस तरह कि आप n डायमेंशन में देख सकते हैं कि जब हम ei1 लेते हैं तो ये 1 0 0 0 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, 0 1 up to 0 0 which is not equal to 0. So each ei is not equal to 0. Ei is not equal to 0 and their product equal to 0. So ri equal to 0 for ri from 1 to s. When ri is equal to 0, so by definition m1 m2 up to ms is linearly independent. So हमने ये प्रूव किया कि फर्स्ट 1 जो है थ्योरम का वो 2 को
अप्लाई कर रहा है, ये मीन कि दोनों इक्वलेंट है। सो M1 to MS इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब सेकंड पार्ट में देखेंगे ये कि 2 जो है ये अप्लाई करता है 3 को, मीन कि थ्योरम में जो सेकंड पार्ट है वो थर्ड पार्ट को अप्लाई करता है, दैट इफ M1 up to MS is linearly independent then every element M belongs to M is uniquely expressible in the form summation I from 1 to S Ri Mi with Ri belongs to R। लेते हैं यहाँ पे, ये सपोज करते हैं 2 को, लेट M1 to MS is linearly independent and M it is equal to, M is an element which is equal to I from 1 to summation I from 1 to S Ri Mi, let this one is first, let M have another expression, then M it is equal to summation I from 1 to S Ri dash Mi। let हम ये शो करना चाहते हैं कि M जो है इस फॉर्म में जो है यूनिकली एक्सप्रेसिबल है। सपोज हम कहते हैं कि ये यूनिकली एक्सप्रेसिबल नहीं है, तो फिर M का एक और फॉर्म बनेगा जो कि Ri के नहीं बल्कि Ri डैश के साथ इसका Mi होगा। तो यहाँ पे Ri Mi और यहाँ पे Ri डैश Mi डैश, तो ये दो फॉर्म M के हैं। हम शो ये करेंगे कि ये दोनों जो है Ri और Ri डैश जो है ये दोनों सेम है। तो लेट दिस वन इज़ 1 एंड दिस वन इज़ 2, सेकंड फॉर्म फ्रॉम 1 and 2 दोनों M की इक्वल है। सो इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड की इक्वल होगा। सो दिस समेशन I फ्रॉम 1 to S Ri Mi इट इज़ इक्वल टू समेशन I1 to S Ri डैश Mi। इसको आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें तो ये सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें समेशन और Mi ये कॉमन है, ये दोनों आप कॉमन आउट करें तो यहाँ पे Ri माइनस Ri डैश आएगा। नाउ बाय सपोजिशन हमने पढ़ा ये है कि M1 M2 up to MS जो है इस यहाँ पे जो है Mi M1 M2 up to MS इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हमने सपोज किया है। सो ईच Ri माइनस Ri डैश इट इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए ये कंडीशन है कि यहाँ पे जो R होगा दैट इज इक्वल टू ईच R इज इक्वल टू 0। आप Ri को इस साइड पे और Ri डैश को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें। सो Ri इट इज इक्वल टू Ri डैश, सो बोथ आर सेम। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। तो ये जो हमारे पास M का एक्सप्रेशन है तो ये यूनिक एक्सप्रेशन है क्योंकि हमने यहाँ पे एक अनदर कंसिडर किया था और दोनों सेम आ रहे हैं। सो इट इज़ अ यूनिक एक्सप्रेशन, thus the expression is unique for M which is our required proof। तो उम्मीद है तलबा यहाँ तक जो हमने इस थ्योरम को किया ये थ्योरम आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कुछ डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।